Hello students, today we are going to study the topic inward looking trade strategy and some of the feature of Indian foreign trade. So first of all, what is the meaning of inward looking trade strategy? The strategy which is related to the self-reliance. We are talking about the import substitution. Under this import substitution, what is import substitution? It is the method to protect the domestic industries through imposing the various taxes, that is the import duties in the area of international trade. And here import substitution implies domestic production of those goods which the economy has been importing from the rest of the world. Now we are decided to produce in our country rather than to import the some other countries. So this is the strategy to save the foreign exchange by restricting the volume of imports. As you know, foreign exchange being extremely scarce was to be utilized for the development imports, referring to import of such plants and machinery which is essential for the growth and development, but cannot be produced domestically owing to the lack of technology and the lack of investment. This is the major reason we are lag behind the development in the field of industrialization on that time. By adopting the inward trade looking trade strategy, the government preferred to economize the use of foreign exchange. Economize here it means to be better utilization of foreign exchange, foreign currencies, whatever we are earning through exporting the various goods from India to the rest of the world. So through import substitution rather than maximizing the generation of foreign exchange through the export promotions. तो वहाँ उस टाइम पे हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट प्रमोशन के बदले हम क्या करते थे, हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर फोकस ज़्यादा किया था, जिससे हम क्या कर सकें, फॉरेन एक्सचेंज को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें, सेव कर सकें. तो अब क्या है, अब हमारी कंट्री क्या करती है, एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है. एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स बनाए हैं, इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन बनाए हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके ऊपर हमने क्या किया है, उनको हम इंकरेज करते हैं. स्कीम्स बनाई हैं बहुत सारे, जिसके तहत हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ावा करते हैं, और इससे हमारे इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ोतरी होती है. नेक्स्ट आगे, ऑल्सो द गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम द इंटरनेशनल कंपटीशन. इसका मेन मकसद ये था कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करना, कि बाहर से जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं वो हमारी इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज़ को टेक ओवर ना कर लें, और फिर से वो हमारे ऊपर रूलिंग ना कर लें, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ वगैरह, बाहर की प्राइवेट सेक्टर्स. तो इसीलिए हमने क्या किया था, हैवी इंपोर्ट क्वाटास वगैरह लगा दिए थे, जिससे प्राइवेटाइजेशन को हमने we are not encouraging the privatization to or promoting the privatization in our country for the economic growth and development. तो इसीलिए हम लोग ज़्यादातर फोकस किस में करते थे, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पे करते थे, और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट क्वाटास वगैरह, ड्यूटीज़ वगैरह लगा दिए थे, लाइसेंसिंग राज वगैरह लगा दिया था. नाउ import substitution is the strategy to save the foreign exchange by encouraging domestic production of such goods which the country has been importing from the rest of the world. Domestic industry is offered protection from the foreign competition through the import restrictions and import duties. तो फॉरेन कंपटीशन जो हमें मिल रहा था बाहर की कंपनी से, मशीन मेड गुड्स से, उसको प्रोटेक्ट करने, उनसे प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या लगा दिया था, क्वाटास लगा दिया था, वो हमारी इंडिया में नहीं आ सकती थी. कॉन्ट्ररी टू एड एक्सपोर्ट प्रमोशन इज अ स्ट्रेटजी टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय प्रमोटिंग द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट एंड मेकिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट. और इससे हम क्या करते थे, हम अपनी कंट्री में ही क्या कर रहे हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज बना रहे हैं जिससे हमारी कंट्री में ही क्या हो, गुड्स का मैन्युफैक्चर हो, और उन्हीं गुड्स को हम क्या करें, एक्सपोर्ट करें. एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए हमने बहुत सारी स्कीम्स बनाई, जिससे हम क्या कर सकें, इंटरनेशनल मार्केट में हमारी इंडियन कंपनीज़, हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ कॉम्पीट कर सकें फॉरेन इंडस्ट्रीज़ के साथ. तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसके ऊपर एक मार्क्स में भी क्वेश्चन बन सकता है और शॉर्ट नोट भी बन सकता है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में. नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी. अगर इसका इसके दो पहलू हैं, गुड इम्पैक्ट और दी नेगेटिव इम्पैक्ट. पहले हम गुड इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे. इंडिया परस्यू ट्रेड स्ट्रेटजी टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन कॉल्ड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी. हम क्या बोलते हैं, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी क्या होता है, वही कि फॉरेन कंपनी से कंपटीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अपनी देश में
देश की इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्वाटास लगा दी थी। उसी को हम क्या बोलते हैं, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी बोलते हैं। व्हाइल इट इज़ एक्सेलरेट द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इट ऑल्सो जनरेट द सम एडवर्स इम्पैक्ट। हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रोथ करने के लिए कुछ मेजर्स तो लिए थे, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ। इट हैड बोथ गुड एज वेल एज बैड इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्रियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। सो दीज आर दी फॉलोइंग वन। गुड इम्पैक्ट हम बात करते हैं, जैसे हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हमने बोला कि एग्रीकल्चर सेक्टर से हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में फोकस किया और उसमें हमको बहुत ज़्यादा जीडीपी इंक्रीज भी देखने को मिली। नियरली अबाउट 12% इन 1951 में थी टू नियरली 25% इन 1991 में हमारी बढ़ोतरी हुई। तो सेम एग्जैक्टली हमारा 13% का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। राइजिंग द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जीडीपी इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी। तो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो हमारा जीडीपी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ, वो किसके हेल्प से हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से हुआ। हम एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना जीडीपी ग्रोथ नहीं कर पाते। नेक्स्ट है, what do you mean by the structural transformation? Structural transformation occur when there is a rise in the percentage share of industrial sector in GDP and corresponding fall in the percentage share of the agriculture sector। तो ये ही हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, structural transformation। Economic growth along with the structural transformation is called economic development। It achieve the objective growth with the modernization, equity and great opportunity of employment। तो ये सारी चीज़ें हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह, इक्विटी वगैरह, जो हमारे प्रिंसिपल्स थे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, वो हम ग्रोथ वगैरह हम जो अचीव कर सकते थे, 5 ईयर प्लान्स की गोल जो हमने आपको बताए थे, पर्सपेक्टिव प्लान्स, वो तभी अचीव कर सकते थे जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर फोकस करते। तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हेयर इट मीन्स द पीरियड ऑफ 1950 टू 1991 के अकॉर्डिंग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। मॉडर्न इंडस्ट्रीज वाज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू टेक्सटाइल एंड जूट। जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो टेक्सटाइल से रिलेटेड और जूट में ही नहीं रह गई थी, जबकि उसमें क्या हुआ था, इंजीनियरिंग गुड्स में, वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स में भी फैल गई थी। FMCGs गुड्स की अगर हम बात करें, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वगैरह की। Thanks to the inward-looking trade strategy, there was a noticeable growth of the sunrise industry। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। It is widely recognized the electronic industry would have failed to take root in the domestic economy had the economy of production not been pursued। नेक्स्ट है ग्रोथ। हमारा पहले क्या था, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में हमारा इतना ग्रोथ नहीं था, मगर जब हमने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन नॉट बीन परस्यूड, सो द ग्रोथ ऑफ ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री इन इंडिया इज ऑल्सो बी एस्क्राइब्ड, मतलब कि स्प्रेड होने लग गया टू द पॉलिसी ऑफ प्रोडक्शन। एक्सपोज टू द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन दीज इंडस्ट्रीज वुड हैव बी फेल टू सर्वाइव। तो यहाँ पर हमने बात करी जैसे कि राइजिंग इंडस्ट्रीज ऑफ द टाइम इज कॉल्ड सनराइज इंडस्ट्री। सनराइज इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, राइजिंग इंडस्ट्री। हमारी देश में इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होना, उसको हम क्या बोलते हैं, सनराइज इंडस्ट्री बोलते हैं। 1950, ये एक मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड्स में, व्हाट इज़ सनराइज इंडस्ट्री। 1950 टू 1990 वॉज एन एरा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्री इन द ग्लोबल मार्केट। तो therefore the electronic industry was then called sunrise industry। Industrialization tends to spin around the sunrise industries, and if production was not granted to this industry during the initial phase of the growth, it would have failed to sustain the impact of competition in the international market। So that's why no wonder the government provided the protection to the industry by imposing very heavy import duty on the import of electric goods, which was high as 400% in the initial stages। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई। So that's why the growth of sunrise industry हमने आपको बताया। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी टू ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट किया गया, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई, जिससे हमारे पास क्या हुआ, रिसोर्सेज का अच्छे से चैनलाइजेशन भी हुआ, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी और इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हुआ। ये हमने आपको बताया। नेक्स्ट है आपका बैड इम्पैक्ट। बैड इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो कुछ जैसे कि हमने अभी गुड इम्पैक्ट पढ़े, इसी तरह से हमारे उसके बैड इम्पैक्ट भी थे। तो जैसे कि हमने बताया, ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। यहाँ पर बैड इम्पैक्ट ये था कि पब्लिक सेक्टर के ऊपर हम पब्लिक PSUs के ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर रहे थे, तो उनकी अपनी मोनोपोली चल रही थी। मोनोपोली मीन्स प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री लेड टू द ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट मोनोपोली। टेलीकम्युनिकेशन वॉज द गवर्नमेंट मोनोपोली टिल द 1990। वहाँ तक अपने चार्जेस वगैरह लगाते थे, जैसे आपको पता होगा। और मैनी ऑफ ईयर्स जस्ट फॉर द टेलीफोन कनेक्शन से वहाँ पर उन्होंने ज़्यादा कनेक्शंस लेते थे, वो लोगों को वेटिंग में रहना पड़ता था। बट नाउ यू गेट रिपीटेड SMS ऑफरिंग वगैरह, टेलीफोन कनेक्शन फ्री ऑफ चार्जेस। जितना कंपटीशन अब बढ़ गया है मार्केट में, आपको उतनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं।
नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड द लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। उस समय कंपटीशन इतना नहीं था, पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को दूसरी प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपटीशन नहीं होने के कारण आपको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। तो मॉडर्नाइजेशन नहीं था, ना ही आपका क्वालिटी इतनी अच्छी थी। तो ये हमारे बैड इम्पैक्ट है। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेटेड स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। हमने यहाँ पर उस समय क्या था, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था। डिस्क्रिमिनेशन कैसे, जैसे हम बता दें आपको, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए थी, इंटरप्राइजेस के लिए थी, अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं थी। सो वन कैन अप्रिशिएट कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी टू बी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो कमांड थी वो किसके हाथ में थी, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के हाथ में थी, और यही उसको कहा जाता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किया गया, तो यहाँ पर भेदभाव किया गया। बट वंस फेल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक व्हेन द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ब्रेड एंड शूज इट अमाउंट टू द इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सेम एग्जैक्टली इनडिस्क्रिमिनेट की बात हो रही है। अब आ जाता है इकोनॉमिकल अनवाइबल स्टेट पॉलिटिकल कंपल्शन। यहाँ पर आ जाता है एनी प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस वुड अल्टीमेटली शट डाउन इफ फाउंड टू बी इकोनॉमिकली अनवाइबल यूनिट। अगर हम बात करते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री अगर लॉस में चल रही है तो वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो बट इन द केस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज इट ऑल्सो बीन अ पॉलिटिकल कंपल्शन टू बियर द लॉसेज एंड कंटिन्यू ऑपरेटिंग अनवाइबल इंटरप्राइजेस। मगर उस समय क्या था, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज लॉस में चल रही थी कंटिन्यूसली, वो फिर भी क्या हो रहा था, रन कर रही थी। एंड द ट्रेड यूनियंस एंड द पॉलिटिशियन अपोज द शटिंग डाउन द अनवाइबल पब्लिक इंटरप्राइजेस ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ सोशल इंजस्टिस टू द वर्कर। मगर वो उनको शट डाउन नहीं किया गया। तो ग्रेजुअली द गवर्नमेंट स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट द बैड इम्पैक्ट ऑफ द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इससे क्या हुआ, हमारे 1991 तक हमारे कंट्री के ऊपर इतना कर्ज हो गया था, हमारे कर्ज के कारण ही और ऐसी स्थिति हो गई थी, फिस्कल डेफिसिट ऐसा हो गया था कि इकोनॉमी को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अपनाना पड़ा, जिसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर आपका ये बोला भी गया है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी विच वॉज पुट इन दी प्लेस ऑफ 1991। तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ तक आपका हो गया।